So guys, as you can see, this is Genshin Impact. I am playing this on my Android OnePlus 5. यार OnePlus 5 का ग्राफिक्स तो इतने खास कुछ है नहीं, मतलब अच्छे है बट not the best in the market right now. So yeah, you can see some sort of lag or a game slowdown over here. But yeah, that being said, a really good game nonetheless. If you have loved Zelda, अगर आपने Zelda खेला है, आपको Zelda जैसे गेम्स पसंद है, so this is definitely a must. So yeah, let's take it forward from here. This is just an example of me going through a shop, and there are multiple things that you could do over here. In fact, like go to a blacksmith, cook your own food, get new clothes, ornaments, accessories, blah 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 blah, a hell lot of things. But yeah, just moving on from there, आगे बढ़ते हैं. The game mechanics are amazing. I just absolutely love how it flows, how the character movements are, and one important and one of my favorite things is this: if you can see it, you can literally climb it. There are no second thoughts about that. But yeah, do take care that your stamina doesn't drop to zero, because if you fall after your stamina drops to zero, you'll die. Yeah, you can get revived, but why die, right? Just climb a mountain, climb a tall building, climb the highest point that you can see, and enjoy the view from there. It's breathtaking. Like, that's the only word that I can think of right now. I'll just show you. Let me just get over here and yep, see this. This is night. It looks much prettier during the day as well. You see that red line on the side? Wait, yeah, that one. We are going to go there. So, chalo, chalte. Oh yeah, by the way, this is the glider. If you jump from anywhere high, this also consumes stamina. So keep an eye. Yep, that's a cat. You'll find some animals over here. You could, I don't know if you could interact with them. I probably haven't figured that out. But yeah, if in case I do, I'll let you know. Let's head out. इस गेम में जगह जगह पर आपको बहुत सारे चेस्ट भी मिलेंगे छुपे हुए. सम ऑफ देम प्रीमियम, सम कॉमन, सम इवन बिगर देन देम. एंड व्हेन यू फाइंड देम, उसे छोड़ना मत, क्योंकि अदर थिंग्स यू विल बी एबल टू फाइंड ऑन द मैप, दिस यू वोंट. एक बार गया तो शायद मिले ना मिले. सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड यूज़ कर लेना बस. तो आइए वापस ग्लाइड करते हैं. लेट्स शो यू हाउ टू गेट अक्रॉस द वाटर. और हाँ, पानी में भी मैं वापस कहूँगा, स्टैमिना पर ध्यान देना. अगर स्विम करते करते स्टैमिना ख़त्म तो आप भी ख़त्म. ये देखो, ये मॉन्स्टर ऐसे बहुत सारे बीच बीच में आते जाएंगे. कुछ ह्यूमनॉइड, कुछ दिस वन इज मेड आउट ऑफ डर्ट, अर्थ एलिमेंट्स, कुछ फायर एलिमेंट्स, कुछ वाटर. बहुत सारे आएंगे और इनको मारने पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे. रिवॉर्ड्स कलेक्ट करके आप शॉप में वापस जा सकते. यू कुड गो टू ब्लैक स्मिथ, यू कुड गो टू सम अदर शॉप्स. यू कुड use it for enhancing your weapons, you could use it for enhancing your character, your skills, and thus the game progress. There's a lot of things that you could do. You will not get bored of it, at least not for some 10, 15, 20 hours of gameplay, because the story in itself is very engaging. Just keep going, keep playing, have fun, and let's just fast forward. Trying to kill this guy. जरूरत तो नहीं है, ये तो ऐसे ही मर जाएगा. ये देखो,
कैरेक्टर एक्सपी, अब ये कैरेक्टर एक्सपी से मेरा कैरेक्टर जो है वो लेवल अप हो जाएगा। मैक्सिमम कैरेक्टर लेवल करंटली इज़ एट 20, जो गेम के अपडेट के साथ शायद बढ़ जाए शायद ना बढ़े, बट 20 भी ठीक ही है। एंड कैरेक्टर लेवल अप से आपका जो कैरेक्टर में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जो एचपी वगैरह बढ़ता है, उससे बेटर तो, उससे बेटर नहीं कहूँगा बट उसके अकॉर्डिंग उसको और कुछ ऐड करने में आपके एनहांसमेंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं। तो एनहांसमेंट्स में देरी मत करना, करते रहना। एनहांस योर वेपन्स, एनहांस योर ऑर्नामेंट्स, योर एक्सेसरीज, ऑल ऑफ देम वुड एंड अप हेल्पिंग यू सम वे और द अदर इन द गेम। अब ये की तो नहीं है मेरे पास, खैर कोई नहीं, बाद में वापस आ जाएंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ कैरेक्टर स्विच। आप जो है गेम में अप टू 4 कैरेक्टर्स के साथ खेल सकते हैं। देयर कुड बी मल्टीपल कैरेक्टर्स दैट यू कुड ओन, बट एट अ टाइम you could have 4 characters which are accessible, and switching between them is really easy, it's just a tap away। और हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। किसी का फायर एलिमेंट होता है, किसी के पास स्ट्रेंथ होती है, किसी का इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है। इन्होंने इसको जैसे पायरो कैरो ऐसे नेम्स दिए हुए, तो उसके बारे में पढ़ लेना ज़रा, वरना अगले वीडियो में बता दूंगा। अब ये चैलेंज एक्टिवेट हो गया, मुझे पता तो नहीं चेस्ट कहाँ पर है, और 30 सेकंड में मुझे चेस्ट ओपन करना है। तो लेट्स जस्ट राइड इट आउट, देखते हैं कहाँ पर है, फिगर आउट कर सकता हो या नहीं। राइट में इन्होंने 2 विंड स्ट्रीम्स तो दिए हुए हैं, तो शायद वो वहीं पर होगा। चलो फॉलो करके देखते हैं। ये गेम में आपको लॉजिक भी काफ़ी लगाना पड़ेगा, जैसे पजल सॉल्व करना यहाँ से वहाँ जाने के लिए। जैसे इस चैलेंज में ये देखो, अब ग्लाइड कर रहा हूँ, ऊपर चल गया। अब अगले इसमें जाके वो देखो चेस्ट दिख गया मुझे लेफ्ट में। 17 सेकेंड। ओ भाई इधर। हाँ, 10 9 8 7 6 5 4 तो या जैसे आपने देखा अभी एक चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आपको कई सारे चैलेंजेस मिलेंगे और उनके रिवॉर्ड्स भी अच्छे होते हैं। ये ऊपर आपको जो ब्लू कलर का क्रिस्टल जैसा दिख रहा है, दैट इज़ यूज्ड एज एन ऑफरिंग टू द गॉड्स। और आप जब गॉड्स को ऑफर करते हैं तो आपका स्टैमिना बढ़ता है, और आपके बहुत सारे जो और स्टैट्स है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो आपने देखा होगा कि इसके पीछे वो रुको, इनको पहले मार लेता है। हाँ मैं बोल रहा था पीछे जो रेड लाइट है हमको वहाँ पर जाना है। ये देखिए पहले इसको मारते हैं, ये ह्यूमनॉइड है मैं जिनकी बात कर रहा था। ओ भाई ये बचा तो खुला नहीं यार, मार तो दिया सबको। इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। क्या निकला? कैरेट निकला। नहीं क्या कैरेट निकला? हाँ ये देखो एक बचा है वहाँ पर। ये देखो आपको बताता हूँ, एरो से इसको मार। ये है पायरो। पायरो मतलब फायर। मुझे भी स्टार्टिंग में काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था इसमें, बट थोड़ा एक दिन खेल के थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। दे दो भाई, इसका खाना बना दूंगा बाद में। क्या मैसेज मिल गया? मास्टर फूड, ओके। चेस्ट मिला है इसमें। एडवेंचरस एक्सपीरियंस, ये एडवेंचरस एक्सपीरियंस बड़े काम की चीज़ है। इससे आपका रैंक बढ़ेगा एडवेंचरस फील्ड में, बड़े बड़े मिशंस मिलेंगे, काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये जब भी हो ये गैदर करते रहना।
और जैसे यहाँ पर बक्से पड़े हैं वैसे अगर आपको बीच में बक्से दिखे तो उन्हें फोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी चीज़ें निकल जाती है। और ये रैंडम कैरेक्टर यहाँ पर क्या ढूंढ रहा था भाई तू? कॉइन पाउच गुम हो गया। नहीं, अब यहाँ पे कौन कॉइन पाउच ढूंढते बैठेगा तेरा? हाँ, बीवी से तो पिटने ही वाला है। चल तू कर ले अपना काम, मैं निकलता हूँ। Just where did I drop it? अब ये जो साइट है ये आपको फिगर आउट करने में हेल्प करेगी कि कौन से एलिमेंट्स आपके एनवायरनमेंट में इंटरैक्टिव है, कौन से वाले कुछ बेनिफिट्स देंगे, विच वंस यू कैन बर्न, व्हाट आर द पीपल यू कैन अटैक एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। सो अगर कहीं डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो डोंट फियर यूजिंग द साइट। और हाँ, ये जैसे यहाँ पर अभी ये इलेक्ट्रो क्रिस्टल मिला, ये थोड़ा रेयर है। यहाँ पर जो आयरन चंक्स है ये तो मिलते रहेगा आपको गेम में। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले, माइनिंग के लिए कुछ मिले या कुछ रेयर मिले, तो मैप खोल के उसे मार्क ज़रूर कर देना, वरना आगे क्या होगा कि आपको मिले ना मिले भरोसा नहीं है। इसके लिए अगर आप मैप में मार्क कर देंगे तो आपको पता रह जाएगा कि वापस यहाँ पर आना है। अब ये मैप का जो ब्लैक स्पेस दिख रहा है वो ब्लैक है क्योंकि वो अब तक मेरे लिए ओपन नहीं हुआ है। बट अगर मैं जैसे ही वो रेड लाइट मैंने आपको जो दिखाई थी, दैट्स अ गॉड्स टेम्पल, तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँच जाऊँगा ये एरिया भी ओपन अप हो जाएगा। वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। चलो क्या चलते हैं आगे, अप एंड अप टुवर्ड्स द रेड लाइट। I don't know if you can see, but that blue thing over there is kind of looks like a monster. I don't know. I'll shoot it and check. Yep, that's a monster. So that red light, that is the statue of the seven, or a temple, or whatever you want to call it. But over here it's called statue of the seven. तो वो मुझे ओपन करना है जाके, I have to just activate it. But sometimes what happens is that there are monsters around it, because of which it gets blocked. So you won't progress till the monster or the creature is defeated. Seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove the strange hidden current seal thingy around the statue of the Seven. You've been a naughty boy. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Try not to enjoy this too much. You're in for a little shock.
that it's completed. Let's get back to our original task, that is just activating the statue of the sun. Switch to me. Let's run. See, as you can see, the map opened up. So whenever you activate a statue, the map keeps opening up. It will get bigger and bigger, more accessible to you, many more things to explore, many more things to do. And I don't know how big this game is, honestly. I've been playing it just for 2 days now. But I have played it for like 5.5, 6 hours, I guess. Yeah. And the original gameplay for the main story is supposedly about 30 to 40 hours. Yeah, that's one big thing. That's one big game. The overall gameplay right now, without any new updates coming up, is at 140, 150 hours. So yeah, it's going to be a fun journey. Yep, just bask the rays of the setting sun in. Sit, run, climb a tree, climb a mountain, hunt, cook, fight, collect elements, make something, chill, just talk to random people, play the co-ops. Just do something you like. You are going to love this game, especially the Zelda lovers. So yeah, see you. Bye. Just kidding. I'm not. No, actually, yeah. Okay. Bye.